Hello students. In LPP series part 1, I have explained you about the formulation of a linear programming problem. In this second part, LPP series part 2, I am going to introduce you to the graphical method which is used to solve a linear programming problem. But before coming to the method, let us understand some basic definitions, some types of solutions. Let us take a linear programming. Maximize z is equal to 40x plus 30y subject to 2x plus 3y less than or equal to 8, x plus 4y less than or equal to 6, x plus y greater than or equal to 2, and xy greater than or equal to 0. This LPP has three parts. The first part is the function which is to be maximized, and this part is called objective function, and there are some linear inequalities which are just the restrictions on the values of x and y, and these inequalities are called constraints. And the last one is the non-negative conditions for the variables. This is called non-negativity. Now let us discuss about some types of solution of LPP. First of all, solution of LPP. By the solution of LPP, we mean a set of values of variables satisfying constraints. What it means? Any set of values of the variables, हम variables की कोई भी वैल्यू लें जो हमारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करती हो, वो कहलाता है उसका सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1. दिस इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, and you can easily check this set, that is x equal to 1, y equal to 1, satisfies all the three constraints. Therefore it is a solution of this LPP. Similarly, x equal to 3, y equal to minus 1 also satisfies all the three constraints. Therefore it is also a solution. Therefore any set of values of the variable satisfying constraints gives us a solution, and so we may have a number of solutions of this LPP. The next one is feasible solution. Feasible stands for non-negative condition. If a solution is non-negative, then it is feasible. Throughout the LPP, feasible stands for non-negativity. Therefore a solution which is also non-negative is called a feasible solution, or we may say a set of values of the variables satisfying constraints and non-negativity is called a feasible solution. For example, x equal to 1, y equal to 1 is a solution, and it is also satisfying non-negativity, so it is a feasible solution. While x equal to 3, y equal to minus 1 is a solution, but it is not satisfying the non-negativity. Therefore it is not a feasible solution. So feasible solution means all non-negative solutions satisfying all constraints. The next one is optimal solution of LPP. Optimal solution of LPP is that feasible solution which optimizes the objective function. That is, that feasible solution, or we may say those values of the variables which satisfies constraints and non-negativity, and for which the objective function is maximized or minimized, whatever be the requirement of your objective functions. And by the solution of an LPP, we mean to find the optimal solution. Therefore, whenever we are asked to solve an LPP, it means we have to find its optimal solution, and the process of finding the optimal solution is to find the feasible solutions, and then out of those feasible solutions we have to find that feasible solution for which the objective function is optimized, that is maximized or minimized. Now let us take an important geometric property of a straight line. If we take a straight line ax plus by equal to c,
we are going to draw this straight line, then first of all we take its first variable x as x-axis and the second variable y as y-axis. Every point has two coordinates, x and y. The first coordinate gives the values of first variable, the second coordinate gives the value of second variable. Therefore, we see that every point is a set of values of the variables. Now, we can draw this straight line very easily by taking its intersection with x-axis and with y-axis. So we draw this straight line. Now, if we take any point on this straight line, then for this point, the value of ax plus by will be equal to c. For every point on the straight line, यदि हम इस straight line पर कहीं भी कोई point लें और उस point पर ax plus by की value निकाले, तो then it will be equal to c. But if we take any point which is not lying on the straight line, हम straight line से अलग यदि कोई भी point लेते हैं space में, then at this point P, ax plus by is not equal to c. इस पर ax plus by c के equal नहीं होगा, because if ax plus by equal to c for the point P, then P lies on the straight line. तो ये P कहीं पर लाई कर जाएगा इस straight line पर, जबकि ये इस पर लाई नहीं करता. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस P पॉइंट पर either ax plus by is greater than c or ax plus by is less than c. Now suppose at P ax plus by is greater than c. हमने माना कि P पॉइंट जो है, जो इस स्ट्रेट लाइन की इस साइड का जो पॉइंट हमने P लिया है, उस पर ax plus by is greater than c है. तो इस साइड की सभी पॉइंट्स पर ax plus by c से बड़ा होगा, c से ग्रेटर होगा, और इस स्ट्रेट लाइन की जो अपोजिट साइड है, दूसरी साइड में सभी पॉइंट्स पर ax plus by c से छोटा होगा. तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, दैट दिस स्ट्रेट लाइन डिवाइड्स द होल प्लेन इनटू टू पार्ट्स. इस स्ट्रेट लाइन से इस प्लेन के दो पार्ट हो जाएंगे, एक इस साइड वाला ये सारा पार्ट हो गया आपका, और एक ये दूसरी साइड वाला सारा पार्ट हो गया. एक पार्ट के सभी पॉइंट्स एक ही इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हैं. जैसे कि हम यहाँ पर ध्यान दें कि यदि P पॉइंट पर ax plus by c से बड़ा है, तो इस पार्ट के सभी पॉइंट्स पर ax plus by c से बड़ा होगा, और इससे अपोजिट साइड के सभी पॉइंट्स पर ax plus by c से छोटा होगा. एंड अपोजिटली at P, if ax plus by is less than c, then at every point of this side ax plus by will be less than c, and in opposite side ax plus by is greater than c. तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूरा प्लेन दो पार्ट में टूट जाता है. अब हमको डिसीजन लेना है, वी हैव टू फाइंड कि कौन से पार्ट में कौन सी इनइक्वलिटी है. तो उसके लिए हम किसी भी पार्ट के किसी भी एक पॉइंट को हम डिसीजन मेकर बना सकते हैं. हम उस पॉइंट पर वो इनइक्वलिटी चेक कर सकते हैं, और जिस पार्ट के एक पॉइंट पर कोई इनइक्वलिटी होगी तो उस पार्ट के सभी पॉइंट्स पर भी वही इनइक्वलिटी होल्ड होगी. उसके लिए द बेस्ट पॉइंट इज द ओरिजिन. इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ax plus by at origin, then it will be equal to 0. Now check at origin पर चेक करिए कौन सी इनइक्वलिटी आपकी होल्ड हो रही है. यदि ओरिजिन पर ax plus by c से लेस है, तो ओरिजिन की साइड में x plus by c से लेस हो जाएगा, और ऑपोजिट साइड में x plus by c से ग्रेटर हो जाएगा. और यदि ओरिजिन पर ax plus by c से ग्रेटर है, तो ओरिजिन की साइड वाले पार्ट में x plus by वो c से ग्रेटर होगा, और ऑपोजिट पार्ट में x plus by c से लेस होगा. एंड it can be very easily seen if c is positive. If this c is positive, then at origin ax plus by is equal to 0, and 0 is less than c because c is positive. Therefore, at origin ax plus by is less than c. So in the side of origin ax plus by is less than c, and in opposite side of the origin
टू द स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि आपकी स्ट्रेट लाइन में सी पॉजिटिव है तो ओरिजिन साइड वाला जो होगा उसमें लेस वाली इनइक्वलिटी होगी x प्लस बी वाई लेस देन सी, और अपोजिट साइड में x प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। सिमिलरली if c is negative, for example 2x plus 3y is equal to -5, then at origin पर हम देखते हैं कौन सी इनइक्वलिटी होल्ड होती है। तो ओरिजिन पर हमने वैल्यू निकाली ax प्लस बी वाई की, दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड 0 इज ग्रेटर देन c बिकॉज c इज नाउ नेगेटिव। c is negative, so 0 is greater than c. Therefore, at origin, ax plus by is greater than c. So, in the side of origin, ax plus by is greater than c, and in the opposite side, ax plus by is less than c. But if c is equal to 0, that is ax plus by equal to 0, that is the straight line is of the type 2x plus 3y is equal to 0, then the straight line passes through the origin. तब स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होगी? आपकी ओरिजिन से। और इस केस में ओरिजिन तो आ जाता है आपका स्ट्रेट लाइन पर, इसलिए इससे तो हम जजमेंट ले नहीं सकते कौन सी साइड में कौन सी इनइक्वलिटी होगी। तो हम किसी भी साइड का एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट पर हम चेक कर लेंगे कौन सी इनइक्वलिटी है, तो उस साइड में वही इनइक्वलिटी आपकी होल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए हम देख सकते हैं कि कौन सी साइड में कौन सी इनइक्वलिटी है होल्ड है, कौन सी इनइक्वलिटी है ग्रेटर है या लेस है। उसके लिए ओरिजिन बेस्ट पॉइंट है यदि आपकी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम फॉर अ गिवन स्ट्रेट लाइन वी कैन फाइंड द टू पार्ट्स in one part ax plus by is greater than c and in the second part ax plus by is less than c। अब एक दूसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या कि यदि हम एक स्ट्रेट लाइन x प्लस बी वाई इक्वल टू सी की एक साइड में ही दो पॉइंट्स ले, फॉर एग्जाम्पल हियर p एंड q, एंड द पॉइंट्स आर इन द साइड इन विच x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन c। हमने पॉइंट कौन सी साइड में लिए हैं? जिस साइड में कौन सी इनइक्वलिटी है? x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन c। यहाँ ये चीज आप जरा नोट करिए, x प्लस बी वाई ग्रेटर देन c वाली साइड में हमने दो पॉइंट लिए और इसमें आप देखते हैं q इज फार्दर देन p। q हमारी स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस पर है इन कंपेरिजन टू p, q ज़्यादा दूर है इन कंपेरिजन टू p। देन द वैल्यू ऑफ ax प्लस बी वाई विल बी ग्रेटर एट q टू द वैल्यू ऑफ ax प्लस बी वाई एट p। इस तरह से हम ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन c वाली जो साइड है इस रीजन में x प्लस बी वाई ग्रेटर देन c में हम स्ट्रेट लाइन से जितनी दूर पॉइंट लेंगे उस पॉइंट पर x प्लस बी वाई की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ये आपको नोट करना होगा। दूसरी चीज़, यदि हम उस साइड में पॉइंट लें जिस साइड में x प्लस बी वाई लेस देन c है, तो हमारा पॉइंट स्ट्रेट लाइन से जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा तो उस पॉइंट पर ax प्लस बी वाई की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो इस तरह से हम जब ax प्लस बी वाई लेस देन c वाले रीजन में हम स्ट्रेट लाइन से दूर पॉइंट लेते हैं तो जितना दूर पॉइंट लेंगे उस पॉइंट पर ax प्लस बी वाई की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो इस तरह से इस साइड में जितना दूर जाएंगे वैल्यू ax प्लस बी वाई की कम हो जाएगी पॉइंट्स पर। इसको हम समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और इस स्ट्रेट लाइन के लिए हमने अपने एक्स वाई प्लेन को ब्रेक किया, तो आप देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये स्ट्रेट लाइन होगी। इस साइड में ओरिजिन वाली साइड में आप देखते हैं यहाँ पर c पॉजिटिव है तो ओरिजिन साइड में होगा x प्लस वाई लेस देन 1 और ओरिजिन की अपोजिट साइड में होगा आपके पास में x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से इस साइड में आप देखते हैं p और q पॉइंट वाली साइड में x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 है। नाउ वी फाइंड लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q बी 2, 3 एंड 3, 4। हमने q पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, 4 लिए और p के कोऑर्डिनेट 2, 3 लिए। तो q is farther than p to the straight line। now find the value of ax plus by at p। हमने p पर ax plus by की वैल्यू निकाली, यानी कि x plus y की वैल्यू निकाली, वो 5 आती है, x plus y इक्वल टू 5, और हम जब q पर निकालते हैं तो वो 7 आती है। तो इस तरह से इस एग्जांपल से आप देखते हैं कि x plus y ग्रेटर देन 1 वाले रीजन में हम जब
फार्दर पॉइंट लेते हैं तो उस पर हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ जाती है, इस x प्लस वाई की वैल्यू बढ़ जाती है। सिमिलरली इन द अपोजिट साइड आर पॉइंट हमने -2 1 लिया और हमने इस स्ट्रेट लाइन से और भी दूरी पर पॉइंट लिया, एस आपने -3 -1 and these are the points in the side of the inequality x plus y less than 1. Now if we find the value of x plus y at the point r, then it is equal to -1, and if we find the value of x plus y at the point s, then x plus y is equal to -4. So you see the value of x plus y at s is less than that the value at the point r. So we conclude that in the side having the inequality greater than, as we move away from the straight line, then the value of the expression ax plus by is going on increasing, while in the side of ax plus by is less than c, that is the side in which the less than inequality hold, as you move away from the straight line, the value of ax plus by is goes on decreasing. So these two important things we should note here. These are very important to note for the graphical method. ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए यहाँ से. Now we come at our method, graphical method. First of all, we should note that graphical method is applicable only to solve the LPP having two variables. केवल वो वेरिएबल वो LPP आप इस मेथड से सोल्व कर सकते हो जिसमें केवल टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स वाली LPP है. और इस मेथड को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एन LPP. ये हमने एक LPP ली, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये कंस्ट्रेंट और ये नॉन नेगेटिविटी. अब इस मेथड से हम समझने के लिए आइए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं. तो सबसे पहले हम किसी भी LPP को सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ऑल द फिजिबल सॉल्यूशन. जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी देखा है, हमें सोल्व करने का मतलब है कि हमको फाइंड करना है इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन. देन फॉर इट we first find all the feasible solution. All the feasible solution means which satisfies these constraints and non-negativity, and then out of those feasible solutions we have to find that feasible solution for which this z is maximized or minimized. So our first work is to find all feasible solutions, that is all the values of x and y's, all set of values of the x and y which satisfy constraints and non negativity. So therefore first of all we find the feasible solutions. हम जब feasible solutions निकालते हैं तो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन आप जानते हैं वो इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा, नॉन नेगेटिविटी को सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब उसमें वेरिएबल्स जो होंगे वो हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे, और ऐसा केवल कहीं में हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है. तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है तो इसका मतलब हमारे जितने भी सॉल्यूशन होंगे, जितने भी फिजिबल सॉल्यूशन होंगे वो कहीं में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे. इसलिए हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशंस आएंगे वो हमेशा कहीं में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे. जब हम इनके फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे तो कहीं में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे. और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एरिया आ जाता है, जैसे कि ये एरिया मैंने आपको फिगर में दिखाया हुआ है, इस टाइप का एक एरिया आ जाता है. और इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स हैं और इसकी बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट्स होते हैं आपके फिजिबल सॉल्यूशंस. और हम इस पूरे एरिया में जो पॉइंट्स हैं, जो ये रीजन बन गया, इसको बोल देते हैं फिजिबल रीजन. और इस फिजिबल रीजन में से हमको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर आपके जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू वो मैक्सिमाइज हो जाए या मिनिमाइज हो जाए, दैट मीन्स ऑप्टिमाइज हो जाए. नाउ इस फिजिबल रीजन में आप पाएंगे कि ये फिजिबल रीजन एक एरिया है जिसकी बाउंड्री जो होगी वो स्ट्रेट लाइंस होगी. नाउ आप देखते हैं कि इस फिजिबल रीजन में कुछ वर्टिसेस हैं, कुछ वर्टेक्स हैं, कुछ कॉर्नर पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर O A B C D. ये वर्टिसेस कहलाते हैं इस फिजिबल रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट्स. इन वर्टिसेस को बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स. अब ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया और इसके जो वर्टिसेस हो गए ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे. हमको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पर आपका जेड जो है वो ऑप्टिमाइज है, मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है. तो अब वो कौन सा पॉइंट होगा? वो पॉइंट आपके बाउंड्री पर भी हो सकता है, वो आपका इंटीरियर पॉइंट भी हो सकता है. लेकिन एक फंडामेंटल थ्योरम आती है आपके पास में, फंडामेंटल एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम. दिस थ्योरम स्टेट्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अ LPP
if exists occur at one of the extreme point of the feasible region। ये फंडामेंटल थ्योरम हमें बताती है कि यदि किसी एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यदि एग्जिस्ट करता है, तो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसके फिजिबल रीजन के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, इसके जो वर्टिसेस है, इन वर्टिसेस में से ही एक पॉइंट होगा आपके पास में उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब हमें ये फंडामेंटल एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम जो है वो हमें हिंट दे देती है कि हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा वो फिजिबल रीजन के इनसाइड में, इंटीरियर में नहीं मिलेगा, वो कहाँ पर मिलेगा, हमारा इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स में से मिलेगा। इस फिजिबल रीजन के जो वर्टिसेस हैं इनमें से कोई होगा फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नाउ एज यू सी इन दिस ग्राफ, in this figure, that there are 5 vertices, and out of these 5 vertices one will be the optimal solution। एक क्या होगा, optimal solution। तो अब उस optimal solution के लिए आने के लिए we have 2 methods। the first method is corner point method। हम इसमें क्या करते हैं, we find the value of the objective function z at every corner point। हम z की वैल्यू हर एक कॉर्नर पर निकालेंगे, O पर, A पर, B पर, C पर और D पर। और यदि हमें z को मैक्सिमाइज करना है तो हम वो पॉइंट लेंगे जिस पर z की वैल्यू मैक्सिमम आई होगी, सबसे बड़ी वैल्यू आई होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू आई होगी, वही हमारा पॉइंट हमें देगा आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले हमें सभी कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, उन पॉइंट्स पर एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, फिर हम उन एक्स वाई की वैल्यू से उन पॉइंट पर निकाल सकते हैं जेड की वैल्यू, और हम फिर देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट हमें दे रहा है जेड की मैक्सिमम वैल्यू या कौन सा दे रहा है हमको मिनिमम वैल्यू। लेकिन इस मेथड्स के लिए, कॉर्नर पॉइंट मेथड में जो कंडीशन है, सबसे पहले तो आपका रीजन जो है वो बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड मीन्स उसके चारों ओर स्ट्रेट लाइन की बाउंड्रीज होनी चाहिए, वो बंधा हुआ होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। द सेकेंड जो इसमें लिमिटेशंस है कि एज यू आर सीइंग इन दिस फिगर दैट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी वर्टेक्स। हमें सभी वर्टेक्स के क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट। उसके लिए हमें बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें ये 2 स्ट्रेट लाइन सोल्व करनी होगी, सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, एंड सो ऑन। एंड दैट इज़ वेरी हेक्टिक वर्क इफ़ यू हैव अ more vertices। Therefore the second method is very convenient, that is isoprofit and isocost method। दूसरा मेथड आता है आपके पास में isoprofit या isocost method। इस मेथड के द्वारा we can directly find that optimal solution or we can directly find that vertex which gives us the optimal solution। हम डायरेक्ट वो पॉइंट निकाल सकते हैं। तो आइसोप्रोफिट में हम कैसे करते हैं, आइए सबसे पहले हम एक ड्रॉ करते हैं आइसोप्रोफिट लाइन। आइसोप्रोफिट लाइन की इक्वेशन जो हमें प्राप्त होती है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग z इज इक्वल टू अ प्रॉपर कांस्टेंट एंड प्रीफरेबली विल टेक z इक्वल टू 0। हम z को 0 ले लेते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है विच इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जब हम z 0 लेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से पास होगी। हम वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वो हो जाएगी हमारी आइसोप्रोफिट लाइन। यदि यहाँ पर मैक्सिमाइज का है वो हो जाएगी आइसोकोस्ट लाइन, यदि यहाँ पर क्या है आपका मिनिमाइज का फंक्शन है। हम वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन वी फाइंड दैट वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑप्टिमाइज, जिसके लिए हमें z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाए, यानी कि हम निकाल देते हैं अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हम निकालते हैं फिजिबल रीजन दैट इज द सेट ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशंस एंड देन वी फाइंड that corner of the feasible region which gives us the optimal solution। उसके लिए 2 मेथड हो गए, कॉर्नर मेथड और आइसोप्रोफिट और आइसोकोस्ट लाइन मेथड। इनको और भी इलस्ट्रेशन के लिए लेट अस टेक सम एग्जांपल एंड आवर फर्स्ट एग्जांपल इज वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एग्जांपल। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 20x plus 10y subject to the condition x plus 2y is less than or equal to 40, 3x plus y is greater than or equal to 30 and 4x plus 3y is greater than or equal to 60 and xy greater than or equal to 0। तो then let us have this example। अब इस एग्जाम्पल को आप यहाँ ध्यान से देखिए कैसे हम इस एग्जाम्पल को कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस इसमें आपको एलेबोरेट हो जाएगा।
सबसे पहले हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो हमारे यहाँ पर वेरिएबल, दो वेरिएबल्स आपके यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज एक्स वेरिएबल एंड द सेकंड इज वाई वेरिएबल। तो एक्स वेरिएबल के लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और इसको हमने एक्स एक्सिस बोल दिया, और वाई वेरिएबल के लिए हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और इसको हमने वाई एक्सिस बोल दिया। मान लीजिए यहाँ पर x1 x2 होते तो हम इसको x1 एक्सिस बोल देते और इसको x2 एक्सिस बोल देते। और फिर हम एक प्रॉपर स्केलिंग लेते हैं। यहाँ पर स्केलिंग हम अपने यहाँ जो हमारे पास जो अमाउंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 40, 30, 60, तो उसी के अनुसार यहाँ टेंस में है तो हमने भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट इस को स्केलिंग कर लिया, हमने ये स्केल मान लिया और अपना स्केल से वही पॉइंट आपने यहाँ पर मेंशन कर लिए एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। नाउ अब हम कैसे करते हैं, आइए। हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट है उन पॉइंट्स को निकालना जो हमारी इन कंस्ट्रेंट्स को और नॉन निगेटिविटी को सेटिस्फाई करता है। वो पॉइंट्स हमारे देंगे फिजिबल सॉल्यूशंस। हम वो सब पॉइंट्स निकाल लेंगे जो हमारी कंस्ट्रेंट को और नॉन निगेटिविटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे सभी फिजिबल सॉल्यूशन। अब यहाँ बात उठती है कि हमें वही सॉल्यूशन लेने हैं, वही एक्स वाई लेने हैं, वही पॉइंट्स लेने हैं जो नॉन निगेटिविटी को सेटिस्फाई करते हैं, और ऐसे पॉइंट्स केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के हो सकते हैं जो नॉन निगेटिव, जिनके लिए एक्स और वाई दोनों कैसे हों, नॉन निगेटिव हो। तो इसलिए हम अपना रीजन, हम अपने पॉइंट्स केवल कहाँ लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेने से हमारी नॉन निगेटिविटी ऑब्वियसली आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड दोज पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट which are satisfying first constraint, second constraint and third constraint। तो आइए अब उनको कैसे निकालते हैं। आइए सबसे पहले हम वो पॉइंट्स निकालते हैं जो हमारी फर्स्ट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज द पॉइंट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंस्ट्रेंट। कैसे निकालते हैं वो पॉइंट, आइए। हमारी फर्स्ट कंस्ट्रेंट है x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 40। चाहे ये लेस है चाहे ये ग्रेटर है, हम सबसे पहले इसको परफेक्ट इक्वेशन बना लेंगे। इसमें यहाँ इनइक्वलिटी की जगह इक्वल ले लेंगे तो ये हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x + 2y इज इक्वल टू 40। ये हमने L1 बोल दिया इसको। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमने परफेक्ट इक्वेशन बना ली और ये बन गई हमारी एक स्ट्रेट लाइन। अब हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन x एक्सिस के साथ निकालते हैं और इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन y एक्सिस के साथ निकालते हैं। आइए, ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, for we put y equal to 0, y equal to 0 means x equal to 40, therefore it intersect x axis at the point 40, 0, therefore it intersect the x axis at this point. Now it intersect the y axis at the point where x is equal to 0, therefore put x equal to 0, we get y equal to 20. So this straight line intersect y axis at 20, so it is passing through this point 40, 0 and this point 0, 20. So we passed a straight line through these 2 points, therefore this is the straight line L1, that is x + 2y is equal to 40. Now we have to find those points satisfying this constraint. हमें वो पॉइंट निकालने हैं जो इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं। आइए ओरिजिन से हम जजमेंट लेंगे कि कौन से पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं। आइए हम इसमें ओरिजिन देखते हैं, क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है। तो हमने ओरिजिन इसमें रखा है यहाँ पर x = 0, यानी कि इस O पर देखा कि O पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर ओरिजिन रखा, x = 0, y = 0, देन इट इज 0 एंड 0 इज लेस देन 40। ये बिल्कुल सही है, 0 40 से लेस है। तो इट मीन्स दिस ओरिजिन इज सेटिस्फाइंग दिस कंस्ट्रेंट, देयरफॉर ऑल द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन साइड्स इज सेटिस्फाइंग दिस कंस्ट्रेंट। देयरफॉर ये पॉइंट हो गए, ये जो मैंने एरो लगाया है, एरो की साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी पॉइंट हो गए वो मेरी इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह से नाउ we are going to find those points which are satisfying the second constraint। तो हम सेम प्रोसेस लगाते हैं। सबसे पहले सेकंड कंस्ट्रेंट को हम परफेक्ट इक्वेशन में बदलते हैं। परफेक्ट इक्वेशन में बदलने पर ये आ गई 3x + y = 30। अब हम निकालते हैं हमारी ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। फॉर वी पुट y = 0, y = 0 gives x = 10, so it intersect x axis at 10 and y axis at 30, therefore we meet these 2 points and we get the straight line L2। तो इस तरह से L2 स्ट्रेट लाइन आ गई। नाउ अगेन वी हैव टू चेक द साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन
जिस साइड के पॉइंट उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो उसके लिए फिर से हम ओरिजिन देखते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन होगी आपकी, आप देखिए ये L2 हो गई, ये L2 हो गई आपकी। अब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है, आइए हम देखते हैं क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है। हमने x = 0 y = 0 रखा तो यहाँ 0 आया। 0 30 से ग्रेटर होता है नहीं, इक्वल होता है नहीं, तो इसका मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो ओरिजिन की साइड वाले इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, फिर कौन करेंगे? ओरिजिन से जो दूसरी साइड के पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन के, वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स इसको कौन सेटिस्फाई करेंगे? ये पॉइंट आ गए आपके पास में, ये पॉइंट आ गए आपके पास में जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देयरफॉर you see that these are the points which are satisfying the second constraint. Now similarly we find the points which are satisfying the third constraint. So first of all we make the inequality into perfect equation, then it becomes 4x plus 3y is equal to 60. Now we find the intersection of this straight line with x-axis and y-axis. We put y equal to 0, x is equal to 20. Therefore it intersect x-axis at 20. At 50. At 15, sorry. When we put y equal to 0, 4x is equal to 60, therefore x is equal to 15, so it intersect x-axis at 15. And when we put x equal to 0, y is equal to 20, so it is intersecting y-axis at 20, therefore it is passing through 15 and 20, therefore it is straight line L3. Now we have to check the points of which sides are satisfying our constraints. So again take the origin, put x equal to 0, y equal to 0, you get 0 origin, and 0 is greater than or equal to 60. No, 0 is not greater than or equal to 60, therefore origin sides points are not satisfying it. So the points of the opposite side to the origin of the straight lines are satisfying it. तो हमने यहाँ देखा ओरिजिन पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ओरिजिन से दूसरी साइड के पॉइंट हो गए। तो हमने कौन से पॉइंट लिए? आइए हम देखते हैं। ये पॉइंट हो गए आपके पास में, ये जो एरो लगे हैं आपके, तो ये पॉइंट हो गए जो हमारी थर्ड कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं। नाउ हमें तो वो पॉइंट लेने हैं जो ऑल द थ्री कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, और आप देखते हैं वे वो पॉइंट होंगे जो सभी एरोज को फॉलो करेंगे। जितने भी एरोज हैं ये इनको फॉलो करेंगे, वही वो पॉइंट होंगे जो हमारी सभी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे। और आप देखते हैं वो ये सभी इस रीजन में जितने भी पॉइंट हैं, यहाँ पर यदि मैं कोई भी पॉइंट लूँ इस रीजन में कोई भी पॉइंट लूँ तो वो इन सभी एरो को फॉलो करेगा। इट मीन्स वो इन सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से नॉन निगेटिविटी आपकी ऑब्वियसली हो गई। तो इस तरह से ये वो सब पॉइंट आ गए जो मेरी सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं और मेरी नॉन निगेटिविटी को सेटिस्फाई करते हैं। इस तरह से ये सभी पॉइंट्स से जो एरिया बना, जो रीजन बना, वो मेरा हो गया फिजिबल रीजन। इस तरह से आप देखते हैं ये बन गया मेरा यहाँ पर इस LPP का फिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन में और इसकी बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब है मेरे फिजिबल सॉल्यूशन। नाउ आप देखते हैं इसके 4 वर्टिसेस हो गए, A, B, C एंड D। ये 4 वर्टिसेस हो गए आपकी। इन 4 वर्टिसेस में से ही आपका एक होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमको वो वर्टेक्स निकालना है जिस पर आपका जेड जो है वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा, जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो इन 4 वर्टेक्स में से ही एक पर जेड मिनिमम होगा और एक पर जेड मैक्सिमम होगा। तो आइए हम वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है आपके पास में एक्सट्रीम पॉइंट्स। हम एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाले यानी कि इसके कॉर्नर निकाले, इसके वर्टेक्स निकाले, जिसे हम कॉर्नर पॉइंट मेथड कहते हैं। तो हमने इस तरह से इसके कॉर्नर पॉइंट निकाले। ए के कोऑर्डिनेट हो गए 15 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो एक्स तो 15 हुआ, y इक्वल टू 0। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 40 0 एंड सी कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? आइए, ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है L1 और L2 का। तो देयरफॉर हम L1 की इक्वेशन लेंगे और L2 की इक्वेशन लेंगे, दोनों को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करके हम XY की वैल्यू निकालेंगे, तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास में, सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके 4 18, जब हम L1 को और L3 इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सिमिलरली डी पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन L3 एंड L2।
तो हम L3 और L2 की इक्वेशन लेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाले और अब इन वर्टेक्स पर निकाली जेड की वैल्यू। जैसे ए कोऑर्डिनेट पर x 15 है, y 0 है, तो हमने ये x और y की वैल्यू अपने इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखी, x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, 300 आ गई। सिमिलरली b पॉइंट पर हमने x y की वैल्यू यहाँ पर पुट की, तो ये b पर z की वैल्यू आ गई। सिमिलरली c पॉइंट पर और सिमिलरली d पॉइंट पर। अब हमको क्या करना है, हमें निकालनी है z की z को करना है हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है हमको z की। तो आप देखते हैं आउट ऑफ दीज 4 वैल्यूज 250 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z विच इज ऑब्टेन्ड एट द पॉइंट d। ये कहाँ पर मिली है हमें, d पॉइंट पर। तो देयरफॉर d इज आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, d गिव्स अस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और d पर x इक्वल टू 6 है और y इक्वल टू 12 है, तो देयरफॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 12 और ऑप्टिमम वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू हो गई z की वो हो गई हमारी 240। तो देयरफॉर दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट मेथड या और कॉर्नर पॉइंट मेथड। नाउ बाय द सेकंड मेथड दैट इज आइसोकोस्ट लाइन। इसमें तो आपने सभी कॉर्नर पर जेड की वैल्यू फाइंड आउट की और तब इसकी वैल्यू निकाली, आपने अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाला। हम डायरेक्टली वो पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं जो पॉइंट हमारे जेड को ऑप्टिमाइज करेगा, जो हमें जेड की वैल्यू को मिनिमाइज करेगा या मैक्सिमाइज करेगा। आइए उसके लिए सेकंड मेथड है आइसोप्रोफिट लाइन मेथड और आइसोकोस्ट लाइन मेथड। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मिनिमाइज का है, इसलिए हमारी यहाँ क्या बनेगी, आइसोकोस्ट लाइन मेथड, आइसोकोस्ट लाइन बनेगी। आइसोकोस्ट लाइन कैसे, उसकी इक्वेशन कैसे निकलती है आइसोकोस्ट लाइन की, आइए हम क्या करते हैं, टेकिंग जेड इज इक्वल टू 0। हम ये जो जेड है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसको 0 लेते हैं, तो एक इक्वेशन बन गई 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 0। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई और इस स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या कहेंगे, आइसोकोस्ट लाइन मेथड, आइसोकोस्ट लाइन सॉरी। अब हम इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। एज यू सी दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक तो ये हमेशा कहीं से पास हो रही है, ओरिजिन से 0 0 से पास हो रही है। एक पॉइंट और निकालेंगे हम जिससे ये पास हो रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इससे या तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y और y की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो इससे हमने y निकाला तो y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, -2x। नाउ टेक एनी प्रॉपर वैल्यू ऑफ x, x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, यहाँ पर अपने स्केल के अकॉर्डिंग ले लीजिए, तो कोई भी वैल्यू ले लीजिए और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो इस तरह से एक पॉइंट और आ जाएगा जिससे स्ट्रेट लाइन पास होगी। तो हमने यहाँ पर जैसे x इक्वल टू लिया 5 तो y इक्वल टू आ गया आपके पास में -10। तो एक तो ये स्ट्रेट लाइन आप देखते हैं हमेशा ओरिजिन से पास हो रही है और दूसरी किससे पास हो गई, 5 - 10 से। तो हमने ये पॉइंट प्लॉट किया, ये पॉइंट प्लॉट किया x इज इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -10, तो लगभग यहाँ बैठा है ये पॉइंट आपके पास में 5 - 10। नाउ हमारी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जा रही है और 5 - 10 से जा रही है, इन दोनों को हमने मीट किया तो ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन बनी ये हो गई हमारी आइसोकोस्ट लाइन, आइसोकोस्ट लाइन। आइए अब हमको इस लाइन की हेल्प से ढूंढना है इस फिजिबल रीजन का वो पॉइंट जो हमारे जेड को मिनिमाइज करे। तो आइए अभी हमने लास्ट स्लाइड में आपको समझाया था कि ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये जो स्ट्रेट लाइन है आपकी जो रेड कलर की ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी 20x प्लस 10y। अब ये स्ट्रेट लाइन आपकी इस रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, एक पार्ट में ग्रेटर देन 0 होगा और एक पार्ट में लेस देन 0 होगा। जिस पार्ट में ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी होगी उस पार्ट में हम पॉइंट जितना दूर लेंगे उस पॉइंट पर 20x प्लस 10y की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना इसके नज़दीक लेंगे उतनी ही वैल्यू कम होगी। ये हमने अभी जाना, अभी पढ़ा, अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा। तो अब उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। आइए हमारी लाइन होगी 20x प्लस 10y। आप यदि इसकी इस साइड से कोई भी पॉइंट रख दे, जैसे कि यहाँ पर 1 1 रख दें, 1 1 कोई भी पॉइंट रखें, तो 1 1 पर 20x प्लस 10y की वैल्यू हो जाएगी 30, जो किससे बड़ी है, 0 से। तो इस तरह से देखा आपने कि इस स्ट्रेट लाइन की इस साइड में, यानी कि इस पूरे साइड में, इस पूरे रीजन में 20x प्लस 10y किससे ग्रेटर होगा, ओरिजिन से। तो इसका मतलब हुआ कि इस साइड में हम इस स्ट्रेट लाइन से जितना दूर पॉइंट लेंगे उतना ही हमारी 20x प्लस 10y जो कि मेरा z है, z की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हमें क्या करना है, हमें सोल्व करना है, हमें फिजिबल रीजन का वो पॉइंट ढूंढना है जिस पर z की वैल्यू मिनिमम है।
और अभी हमने देखा कि हम जितना पॉइंट दूर लेंगे z की वैल्यू यानी कि 20x प्लस 10y की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर इस फिजिबल रीजन का वो पॉइंट लेंगे जो इस स्ट्रेट लाइन के नियरेस्ट हो। जो पॉइंट इसके नियरेस्ट होगा उस पर z की वैल्यू उतनी ही कम होगी। चूंकि हमें पॉइंट कहाँ से लेना है, फिजिबल रीजन से। फिजिबल रीजन से के बाहर का पॉइंट हम नहीं ले सकते क्योंकि वो इन सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इस तरह से यदि यहीं पर फंक्शन मैक्सिमाइज का होता तो हम फिर इस फिजिबल रीजन का वो पॉइंट ढूंढते जो इससे फार्थेस्ट होता तो वो इससे सबसे ज़्यादा दूरी पर होता, तो आपके 20x प्लस 10y की वैल्यू उस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होती, मैक्सिमम होती। तो इस तरह से हम देखते हैं, हमने देखा हमारी स्ट्रेट लाइन की इस साइड में 20x प्लस 10y ग्रेटर दैन 0 है, तो इस साइड में हम फिजिबल रीजन के अंदर जितना दूरी पर पॉइंट लेंगे इससे, उस पॉइंट पर z की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, जितना नियर लेंगे उस पर z की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो हमको यहाँ मिनिमाइज करना है, तो हमने यहाँ नियरेस्ट पॉइंट ढूंढा। तो नियरेस्ट पॉइंट ढूंढने के लिए हम देखते हैं, हम इसके पैरेलल अब लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं और इस फिजिबल रीजन का जो सबसे पहला पॉइंट कॉन्टेक्ट में आता है वही नियरेस्ट होगा, और जो सबसे लास्ट का पॉइंट आता है इसके कॉन्टेक्ट में वो ही इसका फार्थेस्ट होगा। तो आप देखते हैं कि हम अपनी लाइन के पैरेलल जब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो जो सबसे पहला पॉइंट इसका कॉन्टेक्ट में आया वो ये पॉइंट D था, जो इसका इट मीन्स D इज द नियरेस्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस फिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन का इस स्ट्रेट लाइन के नियरेस्ट पॉइंट कौन है, D। इसका मतलब D पॉइंट वो फिजिबल सॉल्यूशन है जिस पर Z की वैल्यू, Z मीन्स 20x प्लस 10y की वैल्यू होगी मिनिमम। तो इस तरह से हम आइसोकोस्ट लाइन मेथड में डायरेक्ट हमारे पास वो D पॉइंट आ गया। अब हम केवल D के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, विच इज ऑब्टेन्ड। D इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L3 एंड L2, सो वी सोल्व दिस इक्वेशन ऑफ L2 एंड L3 एंड वी फाइंड द सॉल्यूशन। नाउ one thing you should note here, that this corner point method is applicable only for the bounded feasible region, while this isoprofit or isocost line method is applicable for any type of region whether it is bounded or unbounded. तो therefore इस तरह से हम दोनों मेथड से अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं। नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, minimize z is equal to x plus y subject to 5x plus 10y is less than or equal to 50, x plus y is greater than or equal to 1, y is less than or equal to 4 and xy greater than or equal to 0। तो हमको इसे सोल्व करना है। इसे सोल्व करने के लिए यहाँ पर दो एक्सिस है, दो वेरिएबल है x एंड y। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस बोल दिया और वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस बोल दिया, और हमने एक प्रॉपर जो है यहाँ पर स्केलिंग कर ली। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 जो आपको ग्राफ ड्रॉ करने आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने स्केलिंग कर ली। नाउ वी फाइंड फर्स्ट वी फाइंड द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मीन्स द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस। तो उसको निकालने के लिए आइए सबसे पहले यहाँ पर नॉन निगेटिविटी को मेंटेन रखने के लिए मैं फिर रिपीट करता हूँ, नॉन निगेटिविटी मेरे सॉल्यूशन में बनी रहे, मेरा सॉल्यूशन नॉन नेगेटिव मेंटेन रहे, इसलिए मैं हमेशा अपने आप को कहीं में रखूँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखूँगा। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट ही मैं कंसिडरेशन में लूँगा, केवल सॉल्यूशन अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लूँगा। अब हम सबसे पहले वो पॉइंट्स निकालते हैं जो मेरी फर्स्ट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं। उसके लिए फर्स्ट कंस्ट्रेंट को मैंने इनइक्वालिटी से सबसे पहले कहीं में बदला परफेक्ट इक्वेशन में। ये बन गई मेरी एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन को मैंने ड्रॉ किया, इसका इंटरसेक्शन निकाला मैंने एक्स एक्सिस के साथ में, फॉर विच आई पुट y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 10। व्हेन वी पुट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 and when we put x equal to 0, y equal to 5, therefore it intersect x axis at 10 and y axis, वो x axis at 10 and y axis at 5, so we can draw this straight line. It intersect x axis at 10 and y axis at 5, so we draw this straight line passing through this these two points, and this is line L1. Now we have to find कि
कि कौन सी साइड के पॉइंट हमारी इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके लिए हमने ओरिजिन से जजमेंट लिया। ओरिजिन यहाँ पर हमने देखा क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है, हमने पुट किया x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 आ गया। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 50, बिल्कुल 0 50 से लेस है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर आपके जो पॉइंट हो गए इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने वाले, वो 0 की साइड वाले सभी पॉइंट हो गए। ये पॉइंट हो गए आपके पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट के, जो मेरी फर्स्ट कंस्ट्रेंट को satisfy करते हैं। Now similarly we find the point satisfying the second constraint. So first of all we reduce the second constraint, that is the second inequality into perfect equation, and that is x plus y equal to 1. Now it intersect x axis at the point x equal to 1 and y axis at the point y equal to 1. Now meet these 2 points and draw a straight line passing through these 2 points. We get the required straight line, that is our straight line L2. Now वी हैव टू चेक कि कौन से पार्ट के पॉइंट्स आपको सेटिस्फाई करते हैं। तो उसके लिए 0 0 हमने ओरिजिन से जजमेंट लिया, ओरिजिन यहाँ पर रखा, 0 प्लस 0 0, यहाँ पर 0 आ गया। क्या 0 1 से बड़ा होता है? नहीं, 1 के इक्वल होता है? नहीं। तो आपने देखा कि 0 0 पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका मतलब है 0 की साइड वाला कोई भी पॉइंट इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 0 से अपोजिट साइड यानी कि इस स्ट्रेट लाइन से इस साइड के पॉइंट आपको इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स आ गए जो मैंने एरो किए। तो इस साइड से इस साइड, सॉरी इस स्ट्रेट लाइन से इस साइड के समस्त पॉइंट जितने भी पॉइंट्स है वो इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे। नाउ वी टेक द थर्ड कंस्ट्रेंट, reduce the third constraint into perfect equation, and this equation becomes y equal to 4. Now draw the line y equal to 4. This is the line y equal to 4 passing through the 4 unit intercept of y axis and parallel to x axis. So this is the line y equal to 4, that is L3 line. Now again check कौन सी साइड के पॉइंट आपके थर्ड कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं कि आपने 0 0 लिया। जब आप यहाँ 0 0 रखते हैं, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, यस 0 इज लेस देन 4, या तो लेस हो या इक्वल हो, तो लेस है, बिल्कुल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ओरिजिन की साइड वाले पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह से देखा आपने कि हमारी थर्ड कंस्ट्रेंट को ये सब पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये इस एरो को फॉलो करने वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें तो वो पॉइंट देखने हैं जो सभी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हो। तो वो कौन से पॉइंट होंगे? जो सभी के एरो को फॉलो करते हैं। आप देखते हैं ये सब वो पॉइंट हो गए जो मेरे इन सभी एरोज को फॉलो, इनकी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। डायरेक्शन मीन्स इन सभी कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हैं। तो ये आ गया मेरा आपका इस एलपीपी का फिजिबल रीजन। ये आपके पास में फिजिबल रीजन आ गया, और इस फिजिबल रीजन के वर्टेक्स हो गए A, B, C, D एंड E। तो देयरफॉर नाउ वी हैव टू फाइंड दैट वर्टेक्स, दैट एक्सट्रीम पॉइंट विच गिव्स अस द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z। जो Z की मिनिमम वैल्यू दे वही होगा मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आता है कॉर्नर मेथड। कॉर्नर मेथड में हम सभी कॉर्नर पर यानी कि सभी एक्सट्रीम पॉइंट पर, ये सब कॉर्नर हैं, यही क्या कहलाते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट। हम इन पर क्या निकालेंगे? Z की वैल्यू। तो यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट, पहला एक्सट्रीम पॉइंट A एक्सट्रीम पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 1 0 हो गए। B एक्सट्रीम पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10 0 हो गए। C इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस L3 एंड L1। तो L3 ये हो गई y इक्वल टू 4, L1 ये हो गई। दोनों को आप सोल्व कीजिए और x y की वैल्यू निकालिए। तो ये C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, C कोऑर्डिनेट 2 4 हो गए। D के कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास में 0 4 हो गए सॉरी, एंड E के कोऑर्डिनेट 0 1 हो गए। आप देखते हैं ये y एक्सिस पर हैं। तो इस तरह से आपके पास में यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ objective function Z at every point. You see the value of objective Z at A is 1 and at E is 1, and this 1 is the minimum value of Z. आपने देखा कि सभी वर्टेक्स पर जब वैल्यू निकाली तो सबसे कम वैल्यू क्या है इसकी? 1 आई, और 1 क्या है इसकी? मिनिमम वैल्यू है। तो 1 हो गई Z की मिनिमम वैल्यू, और 1 जिस पॉइंट पर आई है वो हो गया इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब यहाँ आप नोट करते हैं कि 1 जो आई है 1 A पॉइंट पर आई है, तो A पॉइंट भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। दूसरा E पॉइंट पर भी आई है, E भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ कॉर्नर मेथड में देखते हैं कि इसके 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गए। लेकिन यहाँ आप नोट करिए कि यदि ये 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है A और E, 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है,
तो ए और ई को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, यानी कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन का जो एक पार्ट है, ये पार्ट ए ई, इस पार्ट पर जितने भी पॉइंट होंगे वो भी इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे, उन पर भी z की वैल्यू 1 ही आएगी। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसका मिड पॉइंट लेता हूं, यहाँ पर यदि मैं इसका मिड पॉइंट लूं तो उसके कोऑर्डिनेट निकाल लूं a और e का मिड पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास में a और e के मिड पॉइंट के 1 + 0/2, 0 + 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2 1/2, यानी कि x = 1/2 और y = 1/2। देयरफॉर at that point x = 1/2, y = 1/2, z is again 1. So if there are two solution of a LPP, यहाँ पर आप नोट कीजिए कि यदि किसी LPP के दो सॉल्यूशन हैं, दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैं, तो उन दोनों ऑप्टिमल सॉल्यूशन को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट है वे भी होंगे उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम में इस LPP के यहाँ पर केवल एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ इसके इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गए। ए ई जो लाइन सेगमेंट है, ये जो हमारे ग्राफिकल रीजन का जो ये साइड है ए ई, इस पर जितने भी पॉइंट है, इन सब पॉइंट पर z की वैल्यू 1 आएगी और ये सब है इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो देयरफॉर all points on line segment EA are optimal solution, that is it has infinite solution, और इसकी ऑप्टिमम वैल्यू हो गई आपकी 1। हाँ, यदि इसी केस में आपका मैक्सिमाइज, यहाँ पर फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का होता, तो मैक्सिमम z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई आपकी 10, वो केवल एक पॉइंट पर आई b पर, तो b क्या हो जाता, केवल इसका एक यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन केस व्हेन द फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन यह फंक्शन मिनिमाइजेशन का है, तो मिनिमाइजेशन का है तो आप देखते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट पर आ रहा है, 1 a पर भी, यानी कि a भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, e भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और यदि किसी LPP के दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट भी आपका क्या होगा, उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नाउ ये हमने इसे सोल्व किया कॉर्नर मेथड से, कॉर्नर पॉइंट मेथड से। दूसरा मेथड यहाँ पर जो हम जिसका जिक्र करते हैं दैट इज आइसो प्रॉफिट लाइन और आइसो कॉस्ट लाइन। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज का है, तो हम यहाँ आइसो कॉस्ट लाइन लेंगे। आइसो कॉस्ट लाइन कैसे लेते हैं, हम z को = 0 ले लेते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, उसे बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। तो हमारी आइसो कॉस्ट लाइन बन गई x + y = 0। नाउ वी ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन। तो एज यू सी दिस स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से तो पास होगी 0 0 से। एक पॉइंट और निकालते हैं जिससे पास हो रही हो, तो उसके निकालने के लिए वी जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x और x इन टर्म्स ऑफ y। तो वी फाइंड y = -x, देन वी टेक अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ x बाय आवर स्केलिंग। कोई भी यहाँ x की वैल्यू ले लीजिए आप अपने पास से, जैसे हमने x = 1 लिया तो y = -1 आ गया। तो देयरफॉर दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0 and 1 and -1. Now we draw the 2 points. This is the point 1 and -1. Now this is the origin and we meet these 2 points and this is our isocost line. ये हमारी आइसोकोस्ट लाइन हो गई और इसकी इक्वेशन हो गई x + y = 0। अब हमें क्या करना है, देखिए, अब जैसा कि हमने अभी लास्ट एग्जांपल में भी आपको शो किया कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x + y = 0, x + y = 0। हम देखते हैं कि इस साइड में हमारा फिजिबल रीजन यहाँ है, इस साइड में कौन सी इनइक्वालिटी है, x + y > 0 है या <0 है। तो उसके लिए एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, 1 1 ही ले लीजिए, 1 1 आप ले लीजिए। 1 + 1 यहाँ रखा तो 1 + 1 2 हो गया, 2 0 से बड़ा है, ग्रेटर है। तो देयरफॉर जो 1 1 पॉइंट होगा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट का, उस पर x + y जो है वो 0 से बड़ा होगा। तो इट मीन्स इस स्ट्रेट लाइन से, इस आइसोकोस्ट लाइन से इस साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितना भी रीजन है, उस पूरे रीजन में x + y > 0। सो इस पूरे रीजन में कौन सी इनइक्वालिटी हुई, ग्रेटर वाली। और हम जानते हैं कि ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी में हम स्ट्रेट लाइन से जितना दूरी पर जाएंगे, जितना दूर पॉइंट लेंगे स्ट्रेट लाइन से, उस पॉइंट पर हमारे z की यानी कि x + y की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, हमारे ax + by की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। हमको मिनिमाइज करना है तो हमें फिजिबल रीजन के वे पॉइंट ढूंढने हैं जो इसके नियरेस्ट हो। तो फिजिबल रीजन के वे पॉइंट जो इसके नियरेस्ट होंगे, जो सबसे नज़दीक होंगे, उन पॉइंट पर x + y की वैल्यू उतनी ही कम होगी, कम से कम होगी। तो इस तरह से आपके पास में यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, फिजिबल रीजन के नियरेस्ट पॉइंट।
अब नियरेस्ट पॉइंट आप देखते हैं, उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन, और जो भी पॉइंट इसके कॉन्टेक्ट में आएंगे फर्स्ट टाइम वो क्या होंगे इसके नियरेस्ट पॉइंट। अब आप देखते हैं, ये आप देखते हैं, यहाँ देखिए इसके ये पूरा लाइन सेगमेंट ए हमारे इसके नियरेस्ट है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ऐसा इसलिए कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप दैट मीन्स L2 का स्लोप, ये L2 हो गई आपकी, और हमारी आइसोप्रोफिट लाइन का स्लोप सेम है, ये भी -1 है स्लोप आपका, और L2 का स्लोप भी क्या है आपका -1। तो दोनों लाइन कैसी हो गई, पैरेलल। अब पैरेलल हो गई तो आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये लाइन जो है आपकी इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, इस पोर्शन के साथ। इस तरह से ये पूरा पोर्शन फिजिबल रीजन का AE ये इससे सेम डिस्टेंस पर है, इस आइसोकोस्ट लाइन मेथड, इस आइसोकोस्ट लाइन से सेम डिस्टेंस पर है और मिनिमम डिस्टेंस पर है। इस तरह से ये सभी पॉइंट्स जो AE सेगमेंट पर है वो हो गए, वो देंगे हमें Z की मिनिमम वैल्यू, मिनिमाइज करेंगे Z को, तो ये सब हो गए इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इस तरह से आइसोकोस्ट लाइन के द्वारा भी हमने यहाँ पर निकाला कि किस तरह से इस फिजिबल रीजन का जो ये साइड है AE जो साइड है ये द होल साइड AE gives us the optimal solution, and so it has an infinite number of solution. Then now we take another example. This is our example 3. Maximize Z is equal to -3x plus 2y subject to x is less than or equal to 3, x minus y is less than or equal to 0 and xy greater than or equal to 0. हमने अभी 2 एग्जाम्पल किए, दोनों एग्जाम्पल्स में हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े वही कॉन्सेप्ट हमको मेंटेन रखना है और उसी कॉन्सेप्ट से हमें क्वेश्चन समझने। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, सबसे पहले फिजिबल रीजन निकालना है। उसके लिए हमें नॉन नेगेटिविटी मेंटेन रखने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही पॉइंट्स लेने हैं और फिर हमें वो पॉइंट्स लेने हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो इसकी दोनों कंडीशंस को, दोनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो आइए सबसे पहले वो पॉइंट्स निकालते हैं जो मेरी फर्स्ट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं। उसके लिए हम पहले कंस्ट्रेंट को रिड्यूस टू परफेक्ट इक्वेशन में इसे रिड्यूस कर लीजिए। उसके लिए यहाँ जो साइन है लेस देन और इक्वल टू का उसे इक्वल कर दीजिए, तो ये बन जाती है मेरी x इक्वल टू 3। ये आपने इसे लेस देन और इक्वल टू को इक्वल से रिप्लेस कर दिया तो ये बन गई x इक्वल टू 3। ये परफेक्ट इक्वेशन बन गई और ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब इस स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ करने के x इक्वल टू 3 इट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस एट अ 3 यूनिट डिस्टेंस, सो it is x equal to 3. So draw a line parallel to x axis passing through 3, x equal to 3 point. Therefore it is the line L1 that is x equal to 3. Now we have to check कि इस स्ट्रेट लाइन के कौन सी साइड वाले पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आइए ओरिजिन हो गया आपका। ओरिजिन से हम जजमेंट लेते हैं। ओरिजिन इससे इस साइड में है, आपके लेफ्ट साइड में देखिए, आप लेफ्ट साइड में है, तो ओरिजिन से जजमेंट लेते हैं क्या ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो हमने यहाँ ओरिजिन रखा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखा, तो ये 0 आ गया। 0 3 से लेस देन और इक्वल टू है, यस 3 से लेस देन और इक्वल टू है। तो देयरफॉर कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं इसको, ओरिजिन की साइड वाले पॉइंट आपको इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये सभी पॉइंट आ गए आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो आपके इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं। नाउ वी फाइंड द पॉइंट सेटिस्फाइंग सेकंड कंस्ट्रेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिड्यूस द सेकंड कंस्ट्रेंट इनटू परफेक्ट इक्वेशन। यहाँ लेस देन और इक्वल टू है, इसको हमने क्या किया, परफेक्टली इक्वल किया, इक्वल से रिप्लेस किया। तो ये बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 0 और ये L2 दूसरी स्ट्रेट लाइन होगी। हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन होगी जो 45 एंगल पर आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो बिना किसी इंटरसेक्शन के। 45 एंगल पर आपने यहाँ से ड्रॉ कर दी, ये स्ट्रेट लाइन आ गई आपके पास में आपकी L2, ये L2 आ गई आपके पास में। x माइनस वाई इक्वल टू 0 दैट इज y इक्वल टू x, ये लाइन होगी। अब हमको जजमेंट लेना है कि कौन सी साइड वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए अब हमारा ये जजमेंट जो है वो ओरिजिन से नहीं हो सकता, क्योंकि ओरिजिन इज नॉट लाइंग इन एनी ऑफ द साइड ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन इटसेल्फ लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब ओरिजिन खुद ही इस स्ट्रेट लाइन पर आ गया तो ओरिजिन ना ही तो इसकी लेफ्ट साइड में ना ही इसकी राइट साइड में है। तो अब हम क्या करते हैं, इससे किसी भी साइड का एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। जैसे कि हमने कोई भी पॉइंट, मान लीजिए यही पॉइंट लिया हमने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3 0। आप देखते हैं ये पॉइंट लिया हमने,
ये पॉइंट हो गया मेरा 3 0। इस पर मैंने निकाली x माइनस वाई की वैल्यू, तो x इक्वल टू 3 रखा, माइनस वाई 0, 3 माइनस 0 तो 3 आ गया। क्या 3 0 से लेस होता है? नहीं। इक्वल होता है? नहीं। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर ये जो इनइक्वलिटी है आपकी x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब हुआ कि इस साइड में ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, इस साइड के पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो कौन सी साइड के करेंगे? सेकंड साइड वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि कौन से पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं हमारी सेकंड कंस्ट्रेंट को, ये पॉइंट, इससे इस साइड के जितने पॉइंट है। अब आप देखते हैं यहाँ पर कि वे कौन से पॉइंट्स है जो दोनों एरोज को फॉलो करते हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन के एरो को फॉलो करते हैं। इट मीन्स दोनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये सभी पॉइंट आ गए, ये सभी पॉइंट आप देखते हैं, ये सभी पॉइंट आपके आ गए। तो ये बन गया हमारा फिजिबल रीजन। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। इस साइड में यदि आप इसके वाई एक्सिस को इनफाइनाइटली आप इंक्रीज करो तो ये स्ट्रेट लाइन भी इनफाइनाइटली जाती है, तो ये पॉइंट्स भी कहाँ तक चले जाएंगे? इनफाइनाइटली चले जाएंगे। तो ये आपका फिजिबल रीजन आ गया। ये फिजिबल रीजन कैसा हुआ आपका? अनबाउंडेड। ये फिजिबल रीजन आपका कैसा बना है? अनबाउंडेड। यदि हम यहाँ कॉर्नर मेथड अप्लाई करने लगे तो वो हमें डाउट कर देगा, उससे हमें डाउट्स हो जाएंगे कि हमारा सॉल्यूशन हम उससे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में आइसोप्रोफिट या आइसोकोस्ट लाइन ही आपका बेस्ट मेथड है, उसी को आपको अप्लाई करना चाहिए। यदि रीजन बाउंडेड है तब तो आपका कॉर्नर मेथड या आपका आइसोप्रोफिट लाइन, आइसोकोस्ट लाइन मेथड भी आपका दोनों काम कर सकते हैं इक्वली। लेकिन अनबाउंडेड के केस में, जब आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, तो उस केस में केवल आपका आइसोकोस्ट लाइन या आइसोप्रोफिट लाइन मेथड ही काम करेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या है? आपका मैक्सिमाइज है, तो यहाँ पर होगी आइसोप्रोफिट लाइन। आइसोप्रोफिट लाइन की इक्वेशन कैसे मिलती है आप जानते हो, बाय टेकिंग z इज इक्वल टू 0। z को 0 रखा हमने, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई आपके पास में माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। नाउ वी ड्रॉ दिस आइसोप्रोफिट लाइन, और इसकी इक्वेशन होगी आपके पास में y इज इक्वल टू 3/2x। 3/2x को ड्रॉ करने के लिए एक ये कहाँ से पास हो रही है? आपकी ओरिजिन से जाती है। एक तो ये आइसोकोस्ट लाइन और आइसोप्रोफिट लाइन हमेशा ओरिजिन से जाती है। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर वैल्यू ले लेंगे x की। आप अपने पास से, जैसे यहाँ पर हमने x को लिया -1, देन y कितना आ गया? x इक्वल टू -1 लेने पर y इज इक्वल टू आ गया -1.5। देयरफॉर दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 0 0 एंड -1 -1.5। therefore this is the point -1 -1.5 and this is the straight line or isoprofit line passing through the origin and this point -1 and -1.5. now this is the straight line -3x plus 2y is equal to 0. this is the straight line and we have to find that point of the feasible region for which z is maximized. therefore first of all फाइंड, देखो अब आपका क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है आपकी आइसोप्रोफिट लाइन है, ये आपके फिजिबल रीजन के मिड से गुजर रही है, उसे इन बिटवीन फिजिबल रीजन से गुजर रही है। अब क्या होगा आपके पास में, कहाँ पर जेड मैक्सिमाइज होगा, कहाँ पर जेड मिनिमाइज होगा? आइए उसको देखने के लिए इस फिजिबल हम देखते हैं इस स्ट्रेट लाइन की कौन सी साइड में इनइक्वलिटी, यहाँ पर इनइक्वलिटी ग्रेटर है और कौन सी साइड में ये लेस है। आइए वो देखते हैं हम कौन सी साइड में ग्रेटर है और कौन सी साइड में लेस है। तो आइए उसको देखने के लिए किसी भी साइड का आप एक पॉइंट ले सकते हैं। इस साइड का हमने ये पॉइंट ले लिया 3 0, इस स्ट्रेट लाइन की इस साइड में ये पॉइंट है, कोई भी आप 1 0 ले लीजिए, 0 3 0 2 0 या कोई भी आपने 1 0 पॉइंट लिया जो एक्स एक्सिस पर होगा। 1 0 पर आपने वैल्यू निकाली तो कितनी वैल्यू आती है इसकी? -3 इज लेस देन 0। देयरफॉर नोट कि इस स्ट्रेट लाइन से जो ये राइट साइड है, राइट साइड में -3x plus 2y इज लेस देन 0. सो व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन इन दैट साइड, then the value of -3x plus 2y will go on decreasing. देखिए जब इस साइड में, इस स्ट्रेट लाइन की इस साइड में, राइट साइड में आपने देखा कि -3x plus 2y वो 0 से लेस है, तो इधर कौन सी इनइक्वालिटी है? दैट इज लेस देन 0. सो इस साइड में हम जितनी ज़्यादा दूरी पर पॉइंट लेंगे, इससे जितना ज़्यादा दूर जाएंगे,
जितना भी हम बाहर को चलेंगे, इससे दूर जाने की कोशिश करेंगे, हमारे जेड की वैल्यू उतनी ही घटती चली जाएगी, लगातार वो वैल्यू घटती चली जाएगी। लेकिन हमें यहाँ जेड को करना है मैक्सिमाइज, तो हमको तो जेड को बढ़ाना है। तो जेड किस साइड में बढ़ेगा, आइए, जब इस साइड में आपका -3x + 2y इज लेस देन 0 है, तो इससे अपोजिट साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में वो होगा ग्रेटर देन 0। सो इस साइड में हम जितना दूरी पर पॉइंट लेंगे उतनी ही जेड की वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इट मीन्स जेड को जो मैक्सिमाइज करेंगे वो किस साइड के पॉइंट करेंगे, आपके लेफ्ट साइड वाले पॉइंट करेंगे। लेफ्ट साइड में फिजिबल रीजन का जितना भी दूरी पर पॉइंट होगा वो उसको उतना ही जेड को मैक्सिमाइज करेगा। अब इधर जो फारथेस्ट पॉइंट होगा वही जेड को मैक्सिमाइज करेगा। लेकिन हम देखते हैं इस साइड में मेरा जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, हम आगे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते चले जाए तो इस तरह से हमें हमेशा इस फिजिबल रीजन का एक पार्ट उस लाइन के कांटेक्ट में मिलेगा। कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि जिस पॉइंट के बाद में हमारी स्ट्रेट लाइन जो हम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं उसका कांटेक्ट इस रीजन से बाहर हो जाए। कहने का मतलब है कि इस साइड में हम फारथेस्ट पॉइंट इसका ढूंढ नहीं सकते, हम जितना चाहे हम आगे बढ़े फिजिबल रीजन का पोर्शन हमारी आइसोप्रोफिट लाइन के पैरेलल लाइन के कांटेक्ट में रहेगा। इस तरह से हम देखते हैं हम इसमें जेड को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो भी कैसा है, अनबाउंडेड हुआ आपके पास में, वो भी कैसा बनता है आपका, अनबाउंडेड। तो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। अब यदि यहीं पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा फिजिबल रीजन था अनबाउंडेड और हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी कैसा आया, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड क्यों आया, क्योंकि हम जेड को मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे। तो हमने देखा कि इस साइड में जेड मैक्सिमाइज होगा और इस साइड में हम ढूंढना चाह रहे थे फिजिबल रीजन का फारथेस्ट पॉइंट, बट the farthest point cannot be determined as we move away from the straight line we get another point of the feasible region which is lying farther। हम इससे जितना भी दूरी पर चाहे उतनी दूरी पर फिजिबल रीजन का पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, अनबाउंडेड। लेकिन यदि यहीं पर हम ध्यान दें, यदि यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज का न होकर मिनिमाइज का होता तो तब हमारा यहाँ पर उद्देश्य होता जेड को मिनिमाइज करना, जेड की वैल्यू को मिनिमम करना, कम से कम करना। और आप देख रहे हैं जेड किस डायरेक्शन में मिनिमम होगा, जहाँ पर जेड की वैल्यू जिस डायरेक्शन में डिक्रीज होती है, कम होती है। तो वो देखा आपने कि इस साइड में लेफ्ट साइड में आपने देखा था कि -3x + 2y लेस देन 0 था। तो इस साइड में हम जितना दूरी पर जाएंगे जेड की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो इस साइड में जो फारथेस्ट पॉइंट है वो ये है आपका, तो इस पर जेड क्या होगा, आपका मिनिमाइज्ड हो जाएगा। तो ये देगा आपके पास में इसकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब, यदि यहाँ जेड कैसा, यदि यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होता, मिनिमाइजेशन का। तो तब क्या सॉल्यूशन होता, तब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाउंडेड हो जाता, हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते। तो देखिए तब भी फिजिबल रीजन तो आपका अनबाउंडेड था, लेकिन आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसा बन गया था, बाउंडेड हो गया था। तो इस तरह से आपने देखा कि जब फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड होता है तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन अनबाउंडेड भी हो सकता है और आपका बाउंडेड भी हो सकता है। यहाँ मैं फिर रिपीट करूँगा कि आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप जब आपने पिछले जो दोनों एग्जांपल्स किए उनमें आपका फिजिबल रीजन आपकी आइसोप्रोफिट लाइन के टोटल एक साइड में था। अब जब फिजिबल रीजन एक साइड में होगा तो उसके फारथेस्ट पॉइंट भी होंगे और नियरेस्ट भी होंगे। फारथेस्ट पॉइंट उसको मैक्सिमाइज करेगा और नियरेस्ट पॉइंट उसको मिनिमाइज करेगा। लेकिन यदि आपकी आइसोप्रोफिट लाइन आपके फिजिबल रीजन से पास हो जाती है, जैसा कि इस केस में हुआ, तो आपका फिजिबल रीजन कुछ एक राइट साइड में आ जाएगा और कुछ लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब आपको देखना है कि कौन सी साइड का फारथेस्ट पॉइंट उसको मिनिमाइज करेगा और कौन सी साइड का फारथेस्ट पॉइंट उसको मैक्सिमाइज करेगा। उसके लिए आपको देखना है कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है, आइसोप्रोफिट लाइन है, ये जैसे -3x + 2y = 0, कौन सी साइड में ग्रेटर देन इनइक्वालिटी है। उस साइड में जिसमें ग्रेटर देन इनइक्वालिटी है उस साइड में तो आप जानते हैं पॉइंट जितना दूर लोगे जेड की वैल्यू उतनी ही मैक्सिमाइज हो जाएगी। और जिस साइड में लेस देन इनइक्वालिटी है, यानी कि जिस साइड में इस स्ट्रेट लाइन के, इस आइसोप्रोफिट लाइन की जिस साइड में -3x + 2y लेस देन 0 होगा, उस साइड में जितना दूर जाएंगे जेड की वैल्यू उतनी ही मिनिमम हो जाएगी। तो हम अपने फिजिबल रीजन का फिर वो पॉइंट निकाल लेंगे उस साइड का जो फारथेस्ट पॉइंट होगा हमारी स्ट्रेट लाइन से।
तो इस तरह से देख सकते हैं। दूसरा हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारी आइसोप्रोफिट लाइन फिजिबल रीजन से पास होगी, वो जब होगी जब यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके जो कोफिशिएंट है वो अपोजिट साइन के होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ऐसा होगा तभी ऐसा होगा। यदि दोनों ये सेम साइड के होंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आपके सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से जाएगी और तब आपका फिजिबल रीजन सारा एक ही साइड में आ जाता है। तो अब यहाँ पर तब क्या होगा, देखो जब यहाँ एक माइनस होगा एक प्लस होगा आपके पास में कोफिशिएंट, तो आपको देखना है कि आपकी आइसोप्रोफिट लाइन आपकी ओरिजिन से गई और इस तरह से फिजिबल रीजन से पास हो गई। तो जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट निगेटिव है उस स्ट्रेट लाइन से उस वेरिएबल वाला एक्सिस जिस साइड में है उस साइड में जेड आपका मिनिमाइज होगा, उस साइड के फिजिबल रीजन के फारथेस्ट पॉइंट से जेड मिनिमाइज होगा। और जिसका साइन पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है उसका साइन पॉजिटिव है, तो इस आइसोप्रोफिट लाइन से इस साइड में y एक्सिस है पॉजिटिव वाला, तो इस साइड का जो फारथेस्ट पॉइंट होगा वो जेड को मैक्सिमाइज करेगा। x का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है, तो इस आइसोप्रोफिट लाइन से इस साइड में x एक्सिस है, तो इस साइड का जो फारथेस्ट पॉइंट होगा फिजिबल रीजन का वो इसको मिनिमाइज करेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इस केस को समझ सकते हैं कि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो सकता है लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। लेकिन यदि फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा बाउंडेड होगा, फिर उसमें कभी भी अनबाउंडेडनेस नहीं आ सकती। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल। This is our fourth example. Maximize z is equal to 5x plus 3y subject to the condition 3x plus 5 is greater than or equal to 15, 2x plus 3y is less than or equal to 6 and x, y are greater than or equal to 0. So now we apply the method, graphical method. First of all we find the feasible solution, that is the feasible region, for which just we take the point of first quadrant in order to satisfy this non-negativity, and then we first we find the point satisfying the first constraint, and in order to find these points we first make the we just reduce the inequality into the perfect equation, and that is reduced to 3x plus 5y is equal to 15, 3x plus 5y is equal to 15, and it is a straight line. It intersect x axis at 5, put y equal to 0, x is equal to 5, and it intersect y axis, put x equal to 0, y equal to 3, therefore it intersect y axis at 3, therefore we meet these 2 points and this is the straight line L1. Now we find the point satisfying this inequality. अब हम देखते हैं कौन से पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। उसके लिए 0 0 से हम जजमेंट लेते हैं। 0 0 का जजमेंट कैसे लेते हैं, आइए हम देखते हैं क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है। तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, उसके लिए हमने यहाँ पर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखा है। 0 हो गया, 0 15 से ग्रेटर है नहीं, 0 15 के इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। जब 0 0 नहीं करता तो इस स्ट्रेट लाइन से 0 0 की साइड वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो कौन से करेंगे, इससे दूसरी साइड वाले पॉइंट करेंगे। ये आ गया 0 0 तो इस साइड में है इस स्ट्रेट लाइन के, तो इस साइड के नहीं करते, तो अपोजिट साइड के ये पॉइंट आ गए। ये सारे पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट जो आ गए इस साइड के, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ सिमिलरली वी फाइंड द पॉइंट सेटिस्फाइंग द सेकंड कंस्ट्रेंट। सेकंड कंस्ट्रेंट को हमने परफेक्ट इक्वेशन में बदला, वो हो गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, उसके लिए y को 0 रखा, x इक्वल टू 3 आ गया आपके पास में। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस को। फिर y एक्सिस के लिए आपने यहाँ को x को 0 रखा तो y इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 2 इसको यहाँ इंटरसेक्ट करती है। हमने इन दोनों पॉइंट को मीट किया, मिलाया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये L2 आ गई। नाउ वी फाइंड द पॉइंट सेटिस्फाइंग द सेकंड कंस्ट्रेंट। Now put x equal to 0, y equal to 0, it reduced to 0. Is 0 is less than 6? Yes, 0 is less than 6. तो 0 0 इसको सेटिस्फाई कर गया, तो ओरिजिन इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पर ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाइड है, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन की साइड वाले जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट है वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह से इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट हो गए हमारे ये पॉइंट हो गए। अब हमको फिजिबल सॉल्यूशंस के लिए या फिजिबल रीजन्स के लिए वे पॉइंट देखने होते हैं जो दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हो, यानी कि दोनों कंस्ट्रेंट की बातें मानते हो, दोनों कंस्ट्रेंट की
एरोज को फॉलो करते हो। आप यहाँ देखते हैं कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता जो दोनों कंस्ट्रेंट को फॉलो करता हो, दोनों कंस्ट्रेंट के एरो को फॉलो करता हो। इस एरो के अकॉर्डिंग वो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन से इधर होना चाहिए। यदि वो इधर हो गया तो फिर वो इसके एरो को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरह से इस एग्जांपल में आप देखते हो देयर इज नो पॉइंट इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट में यहाँ आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नॉन निगेटिविटी रहनी है। तो देयर एग्जिस्ट, और पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही क्या होते हैं आपके फिजिबल सॉल्यूशन। पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही सभी नॉन निगेटिव होते हैं, तो वो क्या होते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप देखते हो कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में यहाँ कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपकी दोनों कंडीशंस को, दोनों कंस्ट्रेंट को साइमल्टेनियसली एक साथ सेटिस्फाई कर सके। तो इट मीन्स देयर इज नो फिजिबल सॉल्यूशन। इस एलपीपी का कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। नो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई कैन सेटिस्फाई both the constraints and non-negativity simultaneously, so no feasible solution exists। इसका कोई feasible solution ही नहीं है, इसलिए optimal solution का तो सवाल ही नहीं उठता है फिर, क्योंकि optimal solution is found from the feasible solutions, therefore देयर इज नो फिजिबल सॉल्यूशन। इसका आंसर केवल क्या बनता है, नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको 4 यहाँ पर एग्जांपल्स कराए, एंड ऑल द 4 एग्जांपल्स आर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। देन यू कैन डू द अदर एग्जांपल्स, टेक एनी एग्जांपल, टेक एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्राफिकल मेथड एंड ड्रॉ द फर्स्ट ऑफ ऑल reduce the constraint into perfect equations, draw the straight line corresponding to these equations, and then find the points satisfying the given constraints, and thus you can find the feasible region, that is the feasible solutions. And out of these feasible solutions, find the point or find the values of the variable for which z is maximized or minimized. So that was all for the graphical method, and now you can do every type of questions from the chapter of this graphical method. And thanks, have a nice day, thank you.